Hello student, in the last video I have completed question number 1 and question number 2 of exercise 2.1. In this video I will start with question number 3. Student, let's see the question number 3. What is given in question number 3? See, question number 3 is which of the following matrices are singular or non-singular matrix? Which of the following matrices are singular and non-singular? Student, as I taught you, which matrix is said to be a singular matrix or which matrix is said to be a non-singular matrix. Beta, students, you have to refer my old videos. In that I taught you which matrix is said to be a singular matrix. Singular matrix कब बोलते हैं? When the determinant of the given matrix, when the determinant of the given matrix is zero. Listen very carefully. When the determinant of the given matrix is zero, determinant is zero. अगर determinant zero है, then we say that the given matrix is a singular matrix. If the determinant of the given matrix is not equal to zero, कोई भी given matrix का determinant अगर zero नहीं आता है, zero के अलावा कोई भी number आता है, any number, then we say that it is a non-singular matrix. So student, look here, the given matrix is, this is the given matrix, okay? Let, suppose मैं इसका एक नाम दे देता हूँ, let given matrix को A दे दिया मैंने, and the given matrix is A, B, C, P, Q, R, 2A minus P, 2B minus Q, and 2C minus R. Everyone, look here very carefully, student. This is the given matrix. The question is whether this matrix is a singular matrix or non-singular matrix. For this we need to find determinant of given matrix. बेटा हम determinant find करेंगे स्टूडेंट, इसका हम determinant find करेंगे. अब determinant के लिए मैट्रिक्स को देखो ऐसे लिखना है आपको. स्टूडेंट, मैट्रिक्स जो हमने लिखी है वो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी है. पॉइंट टू बी नोटेड, जो मैट्रिक्स लिखी है वो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी है. डिटरमिनेंट फाइंड करते समय मैट्रिक्स को वर्टिकल लाइन के बीच में लिखना है. ठीक है, ये देखो वर्टिकल लाइन है, उसको बोला जाता है डिटरमिनेंट. तो ए का ये मैंने डिटरमिनेंट लिख दिया, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू दिस. अब मैं इसको फाइंड करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा. इसको सॉल्व करने में इफ द आंसर इज जीरो, इफ द आंसर इज zero, then the given matrix is said to be a singular matrix. If it is not zero, then it is said to be a non-singular matrix. Clear everyone? Let's start. Now, how to find the determinant of a given matrix? बेटा, in the lower standard, in standard 11th, आपने सीखा था how to find the determinant. लेकिन अगर किसी को याद नहीं है तो मैं थोड़ा रिवीजन ले लेता हूँ तुम्हारे लिए. See, this is 3 into 3 determinant, 3 into 3 determinant है. इसको 2 into 2 के ऑर्डर में कन्वर्ट कर देंगे हम लोग. 2 into 2 के ऑर्डर में कन्वर्ट करके विल सॉल्व दिस. अब 2 into 2 का कैसे ऑर्डर कैसे कन्वर्ट करते हैं देखते हैं. चलो स्टूडेंट, ये देखो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है A B C, फर्स्ट रो को A you have to write here और एक डिटरमिनेंट इधर बनाना है. ठीक है, फर्स्ट रो में जो सेकंड एलिमेंट है बेटा, इधर लिखना है माइनस बी. जो सेकंड एलिमेंट मेरा बी है, इसको लिखना माइनस बी और इधर एक डिटरमिनेंट बनाना है 2 into 2 में. फिर ये लास्ट वाले लिखना है प्लस सी और एक डिटरमिनेंट बनाना है. देखो यहाँ पे 2 into 2 में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 3 डिटरमिनेंट बना दिया. मींस 3 into 3 का जो डिटरमिनेंट था उसको 2 into 2 में कन्वर्ट कर रहा हूँ, 2 into 2 में कन्वर्ट कर रहा हूँ रो वाइज. तो पहला रो क्या मेरा A B C, ये जो मैंने यहाँ पे साइन पुट किया है प्लस माइनस प्लस, ये जो साइन है वो डिटरमिनेंट के साइन है. सो A एक मैट्रिक्स, फिर माइनस B दूसरा मैट्रिक्स, दूसरा डिटरमिनेंट और प्लस C तीसरा डिटरमिनेंट. ओके, अब इसके अंदर क्या लिखना है मैं तुमको बताता हूँ. प्लीज लुक हियर वेरी केयरफुली, प्लीज लुक हियर वेरी केयरफुली. अब स्टूडेंट देखो, इधर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है. ऐसा ये हॉरिजॉन्टल लाइन गई, पहले A है, इसका डिटरमिनेंट पहले A है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने A से खींचा और A से वर्टिकल लाइन, A से हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे और A से वर्टिकल लाइन. व्हाट इज रिमेनिंग? ये 4 नंबर्स बचते हैं यहाँ पे, इनको यहाँ पे लिखना है.
Q 2b minus Q 2b minus Q R 2c minus R 2c minus R। ये मेरा फर्स्ट हो गया। अब इसका माइनस बी, अब कम टू बी, बी से ड्रॉ ए हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम बी। बी से हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे बनेगी, देखो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ये होगी हॉरिजॉन्टल लाइन। एंड ड्रॉ ए वर्टिकल लाइन फ्रॉम बी, बी से देखो ये वर्टिकल लाइन। तो डिलीट दीस टू, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन एंड फ्रॉम बी वर्टिकल लाइन। जब हमने ए का बनाया था, ए से हॉरिजॉन्टल लाइन और ए से वर्टिकल लाइन, अब हम बी से बना रहे हैं तो बी को पास होना चाहिए हॉरिजॉन्टल लाइन एंड बी से वर्टिकल लाइन। व्हाट इज रिमेनिंग 1 2 3 4, ये चारों बचते, ये उधर हम लोग लिखेंगे। तो P 2a minus P R 2c minus R 2c minus R, okay, understood। now plus C C पे आओ, ड्रॉ ए हॉरिजॉन्टल लाइन, C पे देखो हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगी पास होगी C से। ड्रॉ ए वर्टिकल लाइन फ्रॉम C, ये देखो वर्टिकल लाइन ड्रॉ होगी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल लाइन। व्हाट इज रिमेनिंग, दीस फोर एलिमेंट्स। चलो इनको लिख देते हैं। P 2a minus P 2a minus P R C से वर्टिकल लाइन, तो Q 2b minus Q 2b minus Q। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं स्टूडेंट। इस डिटर्मिनेंट को मैं रो वाइज एक्सपांड कर रहा हूं। ये जो डिटर्मिनेंट है ये ऑर्डर 3/3 ऑर्डर है। इसका ऑर्डर देखो 1 2 3 1 2 3, 3 रो है 3 कॉलम है, तो इसको बोला जाता है 3/3 का ऑर्डर। सेम डिटर्मिनेंट को आई एम गोइंग टू कन्वर्ट इनटू 2/2 का ऑर्डर। सो टू कन्वर्ट 2/2 का ऑर्डर रो वाइज एक्सपांड कर रहे हैं, तो दिस इज द फर्स्ट रो आई हैव टेकन। तो बेटा हमेशा याद रखो, इधर प्लस दिया जाता है, इधर माइनस दिया जाता है और इधर प्लस दिया जाता है। सो प्लस माइनस प्लस, तो वैसे ही मैंने यहाँ पे देखो ए का साइन प्लस, बी का साइन माइनस एंड सी का साइन प्लस, तो ये मैंने रो वाइज इसको एक्सपांड किया। जब ए आप लोगे तो फ्रॉम ए ड्रॉ ए हॉरिजॉन्टल लाइन एंड फ्रॉम ए ड्रॉ ए वर्टिकल लाइन। व्हाट इज रिमेनिंग, Q 2b minus Q R 2c minus R, Q 2b minus Q R 2c minus R। B से हॉरिजॉन्टल लाइन, B से वर्टिकल लाइन, P 2a minus P, okay, and R 2c minus R, okay। थर्ड वन C horizontal line vertical line, P 2a minus P Q 2b minus Q, ये हो गया। now look here everyone, determinant of A, look here student, as you know very well lower standard में आपने 2/2 का डिटरमिनेंट सॉल्व किया। कैसे करते हैं, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ऐसे इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ओके। इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई और A बाहर आ जाएगा। सो देखो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, Q 2c minus R, Q 2c minus R, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। मैंने पहले ही बोला Q इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस ये फॉर्मूले का माइनस बीच में माइनस आएगा, R इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, R 2b minus Q। ये फर्स्ट डिटरमिनेंट मेरा सॉल्व हुआ है। Q को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, Q को 2c minus R, ये माइनस साइन आपको डालना है, सब डिटरमिनेंट में डालना है माइनस, फिर ये R इससे मल्टीप्लाई होगा 2b minus Q से, ओके। ब्रैकेट इज कंपलसरी, ये डालना फर्स्ट, ये हो गया। नाउ माइनस b, नाउ माइनस b, अगेन सेम प्रोसीजर स्टूडेंट, p को इससे मल्टीप्लाई करो, p मल्टीप्लाइड बाय 2c minus r, p मल्टीप्लाइड बाय 2c minus r, ओके, माइनस r मल्टीप्लाइड बाय 2a minus p एंड मिडल पे माइनस का साइन, अंडरस्टूड, प्लस ये वाला प्लस c
C. Again same procedure, P multiplied by 2B minus Q. P multiplied by 2B minus Q minus Q multiplied by 2A minus P. ये प्रोसीजर है सॉल्विंग 2 into 2 डिटरमिनेंट. चलो लेट्स सी. सेम प्रोसीजर स्टूडेंट, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, बीच में माइनस साइन आ गया, मल्टीप्लाइड माइनस साइन, मल्टीप्लाइड माइनस साइन, मल्टीप्लाइड माइनस साइन, ऐसे मल्टीप्लाई करना है तीनों डिटरमिनेंट में और आपको माइनस में पुट करना है. अंडरस्टूड. चलो ओपन द ब्रैकेट. लेट्स ओपन द ब्रैकेट स्टूडेंट. A as it is, Q multiply by 2C, 2CQ, 2CQ, Q multiplied by R minus QR. Okay. Now minus R multiplied by 2B minus 2BR minus 2BR. Minus minus get plus R multiplied by Q QR. Understood? ये हो गया फर्स्ट मेरा. ब्रैकेट क्लोज. माइनस B P multiplied by 2C, 2CP, P multiplied by R minus PR, R multiplied by 2A, बट यहाँ पे माइनस है, minus 2AR. This minus and this minus get plus PR. हो गया. नेक्स्ट प्लस C, P multiplied by 2B, 2BP, 2BP minus PQ minus 2AQ minus plus QP. Have you understood this? बेटा मैंने Q को ब्रैकेट ओपन कर दिया, R से इधर मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन कर दिया, सिमिलरली P से, R से, P से, Q से, ये सारे ब्रैकेट मैंने ओपन कर दिया. नाउ विल सिंप्लीफाई दिस. स्टूडेंट कॉपी दिस. मैं ये रफ करता हूँ, स्पेस नहीं है ना, आई रफ दिस. ओके. और टेक द स्क्रीनशॉट. Determinant of A. Here we have opened the bracket. Okay, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके मैंने ओपन कर दिया. Now बड़ा ब्रैकेट will going to open. First let's see. Minus QR plus QR get cancelled. Minus PR plus PR get cancelled. Minus PQ plus PQ get cancelled. Student ये cancel हो गया. What is remaining? Let's see. Okay. 2CQ minus 2BR. 2CQ minus 2BR minus B. What is remaining? 2CP minus 2AR minus 2AR plus C 2BP minus 2AQ. Okay, so determinant of A. Now A को अंदर मल्टीप्लाई कर दो. What is 2ACQ minus 2ABR, B को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 2BCP प्लस माइनस माइनस प्लस 2BAR प्लस 2CBP, C को अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2CAQ. बस मल्टीप्लाई कर दो अंदर स्टूडेंट्स. नाउ लुक हियर. 2ACQ minus 2ACQ, अल्फाबेट का ऑर्डर आगे पीछे कोई प्रॉब्लम नहीं है. 2ACQ सेम चीज, ऑपोजिट इन साइन, प्लस माइनस कैंसिल, माइनस 2BAR कैंसिल, माइनस 2BCP प्लस 2BCP कैंसिल, सब कैंसिल हो गया. आंसर इज 0. सी स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आया? 0. जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0, देन द मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए सिंगुलर मैट्रिक्स. हियर द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, therefore a is a singular matrix. A is a singular matrix. Student, A is a singular matrix. अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a not equal to 0 आता, it is a non singular matrix. So let's do the second one now. Okay. Student, now see the next one.
this is the given matrix. Again we have to find the same thing. The given matrix is a singular matrix or a non singular matrix student. Okay, this is the given matrix. मैट्रिक्स का हमने नाम दे दिया with capital letter A. कोई भी मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल लेटर से नाम दे सकते हैं. यू कैन गिव A B C, कोई भी नाम आप इसको दे सकते हो. तो A मैंने इसका नाम दे दिया मैट्रिक्स का. Now what we need to find? We need to find the determinant of a given matrix as I explained you before in the first problem. फर्स्ट प्रॉब्लम में यही बोला था आपको, इसका हम लोग को डिटरमिनेंट फाइंड करना है. तो स्टूडेंट डिटरमिनेंट के लिए वर्टिकल लाइन के बीच में ए और ये मैट्रिक्स वर्टिकल लाइन, जो स्क्वायर ब्रैकेट था वो हटा देने का, वर्टिकल लाइन डाल देने का. इससे होता है डिटरमिनेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इससे. रिमेंबर दिस है, स्क्वायर ब्रैकेट को आपको हटाना है और आपको वर्टिकल लाइन के बीच में सारे नंबर्स लिखते हैं. तो दिस इज सेड टू बी डिटरमिनेंट. अब इसको फाइंड करके अगर इसका आंसर अगर जीरो है तो इट इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स. इफ इट इज नॉट जीरो इट इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. वेरी सिंपल. लेट्स स्टार्ट विद दिस. See student, again we'll expand this matrix. ये बेटा क्या है, 3/3 का ऑर्डर है. क्या है इसका, 3/3 का ऑर्डर है. किस में कन्वर्ट करेंगे, 2/2 में कन्वर्ट करेंगे. चलो लेट कन्वर्ट 2/2. 2/2 में कन्वर्ट करने के लिए रो वाइज एक्सपांड करूंगा. रो वाइज में क्या है मेरा, फर्स्ट रो क्या है 5 0 5. साइन क्या होते हैं, प्लस माइनस प्लस, पता है ना, प्लस माइनस प्लस. सेम वे सेम प्रोसीजर जो फर्स्ट प्रॉब्लम में किया था. लेट्स स्टार्ट रो वाइज. बेटा 5 एक डिटरमिनेंट आ गया. नेक्स्ट है 0 माइनस 0, फॉर्मूले में माइनस है, बताया था मैंने आपको 0. तीसरा क्या होगा, प्लस 5. ओके चलो पहले 5 ड्रॉ ए हॉरिजॉन्टल लाइन. यस. ड्रॉ ए वर्टिकल लाइन. यस. वर्टिकल लाइन हो गया ये. व्हाट इज रिमेनिंग, 99 99 100 105. 99 99 100 105. Okay, next 0. Draw a horizontal line. Yes. Vertical line. Yes. Delete these two. 1 600 105. 1 600 105. Next 5. Vertical line student. 5 a horizontal line, sorry, and vertical line. What is remaining, 1 6 99 99. 1 6 99 99. Clear students. 2 into 2 में मैंने इसको डिवाइड 2 into 2 में कन्वर्ट कर दिया मैंने इसको. नाउ लेट्स सॉल्व इट. 5. व्हाट इज द प्रोसीजर स्टूडेंट, व्हाट इज द प्रोसीजर, 99 into 105. 99 into 105 क्रॉस मल्टीप्लाई एंड 100 into 99. 100 into 99. 99 into 105. 100 into 99. बीच में माइनस का साइन. सो माइनस 0. 1 into 105 minus 100 into 6. Okay, plus 5. 1 into 99 minus, बेटा ये सेम प्रोसीजर, 1 into 99 minus 99 into 6. Clear students? Students 5 99 into 105. 99 into 105 10,395. 10,395. 10,395 minus 100 into 99 is 9900. ओके, माइनस 0 मल्टीप्लाइड बाय दिस तो पूरा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा. प्लस 5 1 into 99 is 99. 99 into 6. 9 6 are 54. 5 carry. 9 6 are 54 और 5 59. 99 into 6. 99 minus 594. Okay students, now look here. बेटा 10,395. 10,395 माइनस करना है 9,900 से. 9,900 से. सो 5 9 13 में से 9 गया, कितना बच गया 4. ये हो गया 0. तो 495 इज रिमेनिंग. सो 495. ओके, ये 0 लिखने की जरूरत नहीं है. प्लस 5 स्टूडेंट 594 माइनस 99 माइनस 594 तो इट इज 495 ओनली. इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो लेकिन यहाँ पे आ जाएगा साइन माइनस का, बिकॉज 99 माइनस 594 तो इट विल बी माइनस 495. ओके, सो 5 into 495 मल्टीप्लाई
प्लस 5 इंटू 495, बेटा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, देखो प्लस माइनस विल बिकम माइनस 495। ओके अब देखो प्लस 5 इंटू 495 माइनस 5 इंटू 495 गेट कैंसिल, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 आ जाएगा, देयरफॉर ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। Okay, copy it down. Question number 3 we have completed 2 question. Remaining 2 questions are homework for you. वो दोनों प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है, मुझे सेंड करना है, कोई भी डाउट होगा आई विल सॉल्व फॉर यू, ठीक है, कोई डाउट होगा तो। So let's start with question number 4 student. Again question number 4 is very important. Find k if the following matrices are singular. Student observe the question very carefully. Find k if the following matrix are singular. उन्होंने बोला है कि जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर है, बताना नहीं है, इट इज ऑलरेडी ए सिंगुलर। मैट्रिक्स सिंगुलर कब होता है? जब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 होता है, देन द मैट्रिक्स इज ए सिंगुलर। तो दिस गिवन मैट्रिक्स इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। तो लुक हियर एवरीवन, सी दिस इज द गिवन मैट्रिक्स, इसका मैंने नाम दे दिया लाइक ए इक्वल टू गिवन मैट्रिक्स, एंड डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज ऑलरेडी 0। It is given that A is a singular. A is a singular matrix. A is a singular matrix given. Therefore, determinant of A equal to 0. Therefore, I can write 7 minus 2 3k is equal to 0. बेटा A is a singular matrix. It is already given और मैंने पहले भी आपको बताया है कि सिंगुलर का मतलब गिवन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 है। सो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इज 0। ओके 7 minus 2 3k equal to 0। नाउ सिमिलरली सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करते हैं बताओ, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 into k is 7k, 3 into 2 ये पहले माइनस साइन डाल दो, 3 into minus 2 is minus 6, 3 into minus 2 is minus 6 is equal to 0। तो 7k plus 6 equal to 0, तो 7k equal to minus 6, तो k का वैल्यू आ गया minus 6 upon 7। therefore क्या बोला था इन्होंने, find k, therefore k equal to minus 6 upon 7। this is the value of k। have you understood this question? okay, copy it down students। student question number 4 का second question is homework for you। थर्ड क्वेश्चन मैंने आपके लिए बोर्ड पे सॉल्व करके रखा है। See the explanation very carefully. This is the given matrix. Let A equal to the given matrix. Okay. Let A equal to the given matrix. Now it is given that A is a singular matrix. It is already given that A is a singular matrix. Singular matrix means determinant of the given matrix is equal to 0. बेटा ये singular matrix है, इसके लिए इसका determinant क्या है? 0. So determinant equal to 0. Now 3 into 3 को determinant को how to solve 3 into 3 determinant? I taught you in question number 3 ना how to solve। देखो इसको 2 into 2 में कन्वर्ट करो, रो वाइज k minus 1 horizontal line vertical line, what is remaining 1 minus 2 2 4, 1 minus 2 2 4, ये हो जाएगा minus 2 3 1 2 4, 3 1 2 4, next is plus 3, ये गया 3 1 1 minus 2। ओके स्टूडेंट, तो k minus 1 1 into 4 4, 2 2 जा 4 और ये माइनस है तो माइनस 4, बट फॉर्मूले का इधर माइनस होता है तो माइनस माइनस विल गेट प्लस, तो यहाँ पे स्टूडेंट प्लस 4 आ जाएगा। नॉर्मली इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो बीच में क्या आता है, माइनस का साइन आता है, तो ऑलरेडी 2 2 जा माइनस 4 तो ये प्लस 4 हो जाएगा, माइनस 2 3 4 जा 12 माइनस 2, ओके प्लस 3 3 into minus 2 is minus 6, 1 1 जा 1, तो minus 1 equal to 0। so k minus 1, 4 plus 4 is 8, minus 2 12 minus 2 is 10, plus 3 minus 6 minus 1 is minus 7 equal to 0। so student 8 into k is 8k, 8 1s are 8, minus 2 into 10 minus 20, 3 into 7 is minus 21, plus 3 minus 7 minus 21 equal to 0। 8k as it is, इन तीनों को ऐड कर दो because all three have same sign, minus minus minus। so 41 और 8 is 49, so 8k minus 49 equal to 0, 8k equal to 49, so k equal to 49 upon 8। the value of k is 49 upon 8। student understood?